Good morning, students. Welcome to Business Studies class. Today we are going to discuss Principles of Management given by Henry Fayol. Topics for the day are, we are going to learn about this great personality, Henry Fayol, and we will be discussing his 7 principle in this session because he has given us total 14 principles. So in this slide, we are going to take up only 7 and the next one we will be taking in the next class. First of all, we will be learning about Henry Fayol. Henry Fayol was born in 1841 and he died on 1925. His profession was, he was a mining engineer and a management theorist. He worked a lot in the field of management and he was a French national. He graduated from Mining Academy at Saint Etienne in 1880. His writing, he wrote his book Administration Industrielle et Générale, which was published in French in 1916. It was republished in English as General and Industrial Management in 1949 and is widely considered as foundational work in classical management theory. ये इनकी जो बुक थी इसने ही इनको और इनके एक्सपीरियंसेस को काफ़ी पॉपुलैरिटी दिलवाई. For his contribution, he is also known as father of general management. और इन्हें जनरल मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है. इससे पहले हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा था जिसके जो फादर हैं वो माने जाते हैं F.W. टेलर एंड ही इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ मैनेजमेंट बट ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड F.W. टेलर वाज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. So the very first principle we are going to discuss is division of work. So जैसे कि नाम कह रहा है division of work. So according to Fayol, if we wanted to have a specialization in the organization, specialization means कम time में quality work आपको करना है. So this principle will help you. How? See, he say work is divided into small tasks and job. And a trained specialist who is competent is required to perform each job. If any organization wanted to become specialized or more what we can say result oriented work they wanted to do in terms of effectiveness and efficiency, so you have to divide your work. It is not possible कि एक पर्सन सारे काम उतनी ही एफिशिएंसी से कर पाएगा. कुछ लोग बहुत अच्छी पैकिंग करते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी कलरिंग करते हैं, कुछ लोग अच्छी प्रिंटिंग करते हैं. तो ही सेड कि डिवाइड द वर्क. प्रिंटिंग एक ही तरह के लोग करेंगे, है ना, पैकिंग एक ही तरह के लोग करेंगे, टूल्स एक ही तरह के लोग रेडी करेंगे. जो जिस काम में परफेक्ट है वो काम उससे करवाना है आपने, सो दैट उस काम को बार बार करके वो उस रिपीटेड परफॉर्मेंस से वो उस ट्रेंड हो जाए. एंड दिस लीड टू स्पेशलाइजेशन. और इससे ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाएगी? स्पेशलाइजेशन. According to Fayol, the intent of division of work is to produce more and better work for the same effort. स्पेशलाइजेशन का जो जिस्ट है वो ये है कि हमने सेम टाइम और सेम रिसोर्सेज में बेटर वर्क करके दिखाना है. तो दैट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन वील अप्लाई दिस प्रिंसिपल. After every principle, we are going to discuss the positive effects and the negative impact. Positive effect means if this principle is being followed, what will be the effect? What are the benefits that organization will enjoy? And what will be the negative effect if any organization is ignoring this principle? इसका मतलब ये नहीं कि इस प्रिंसिपल का कोई नेगेटिव इफेक्ट है, बट इस प्रिंसिपल का नहीं होना कहीं पर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है वो यहाँ पे हमने लिखना है. So positive effect मतलब if this principle is followed, so it helps in bringing the specialization क्योंकि repeated performance by an individual leads to specialization. Number 2, less wastage of resources. तो person जब specialist हो जाएगा तो वो optimum utilization करेगा, minimization of resources, wastage of resources को करेगा.
and this will help definitely to bring efficiency and effectiveness in the work. And if this principle is ignored by the organization, उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो नहीं किया, तो क्या होगा? स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, wastage of resources and inefficient operation. Let's talk about a second principle of given by Henry Ford. It is authority and responsibility. What is authority? According to Ford, authority is a right to give orders and obtain obedience. दूसरों को कमांड करके उनसे काम करवाने को अथॉरिटी कहते हैं, राइट? Whenever any boss give a command to the subordinate, तो हम कह रहे हैं कि अथॉरिटी किसके पास है? सबॉर्डिनेट के पास? नो, इट इज इन द हैंड ऑफ सुपीरियर, जिसके पास पूरा राइट है कि वो आपको कमांड भी करेगा और आपसे काम करवा के भी वो देगा. देन व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? Responsibility means obligation of subordinate to properly perform the assigned duty. और अगर बॉस कमांड कर रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ रही है? डेफिनेटली सबॉर्डिनेट पे आ रही है कि उसको जो टास्क दिया गया है वो उस टास्क को वैसे परफॉर्म करे जैसे उसको कहा गया है. तो इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क. नाउ ये प्रिंसिपल क्यों है? क्योंकि पहले तो हमने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग अंडरस्टैंड किया है. नाउ लेट्स से why we are talking about it is these two words in management. Manager require authority commensurated with their responsibility. There should be a balance between authority and responsibility. कहने का मतलब 3 सिचुएशंस है. रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, अथॉरिटी ज्यादा है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम होगा? नो, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, अथॉरिटी ज्यादा है, तो देयर विल बी डेफिनेटली मिसयूज ऑफ इट. नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है उतनी ही अथॉरिटी है, तो देयर इज अ प्रॉपर बैलेंस, जो कि इस प्रिंसिपल में कहा गया, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन दीज टू टर्म. एंड थर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर एंड अथॉरिटी इज लेस. अब व्हाट विल हैपन? काम बहुत ज्यादा दे दिया बट उस काम को करने की आपके पास राइट नहीं है, तो डेफिनेटली द असाइन्ड टास्क कैन नॉट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम. तो दिस प्रिंसिपल टॉक अबाउट कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन दोज हु आर टेकिंग केयर ऑफ दिस बैलेंसिंग ऑफ दीज टू टर्म, उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे. क्या बेनिफिट मिलेंगे? नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. सो द पॉजिटिव इफेक्ट्स आर with proper responsibility there will be no misuse of authority. तो जितनी आपने अथॉरिटी दी है, अगर उसी के बैलेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देंगे तो वो जो मिसयूज अथॉरिटी के चांसेस है वो नहीं हो पाएंगे. नंबर 2, विद प्रॉपर अथॉरिटी देयर विल बी टाइमली कंप्लीशन ऑफ टास्क. जितना आपने काम दिया है, अगर आप उतनी ही अथॉरिटी भी दे देंगे तो डेफिनेटली जो काम डिले होगा वो नहीं होगा, काम टाइम से होगा एंड क्विक डिसीजन मेकिंग भी होगी. एंड इफ दिस प्रिंसिपल इज मिसिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इट मे लीड्स टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. जैसे कि हमने कहा था, अथॉरिटी ज्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो मिसयूज होगा. सबऑर्डिनेट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द टास्क इफेक्टिवली. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और अथॉरिटी कम है तो टास्क कंप्लीट नहीं होगा और इट मे लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग. Let's talk about the third principle. It is discipline. So this is something which is known to everyone. Discipline means obedience to organizational rules and employment agreement which are necessary for the working of the organization. किसी भी organization में discipline का मतलब होता है to be obedient to the organizational rules. हम किसी भी organization का क्यों नहीं पार्ट हो, वो स्कूल है, वो कॉलेजेस है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो कोई एंटरप्राइज है, कोई एनजीओ है. देयर आर एग्जांपल्स, लॉट ऑफ एग्जांपल्स. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स होते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड लोग किसी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के तहत वहां पे लगाए जाते हैं. तो उन ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को रिस्पेक्ट करना और उन्हें उनके प्रति ऑबिडेंट रहना और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में जो आपने एग्रीमेंट साइन किया है उसके प्रति ऑबिडेंट रहना, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन.
अगर कोई पर्सन उन दो चीजों, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के टर्म्स को नहीं मानता है, डिसओबीडिएंट होता है, तो दे आर नॉट हैविंग दिस प्रिंसिपल. So every organization expect from their employee they should be obedient to organizational rules and employment agreement which they have signed because it is necessary for the working of the organization. According to Fuel, discipline requires good superior at all levels, clear and fair agreement and judicious application of penalty. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको डिसिप्लिन को इंश्योर करना है तो फर्स्ट कंडीशन इज गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, क्योंकि हमेशा सुपीरियर डिसिप्लिन को इंश्योर करते हैं तो सबसे पहले वो चाहिए. नंबर 2, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स. ऐसा नहीं है कि हम रूल्स की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट ने सब कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा हो. सो जितने भी रूल्स ड्राफ्ट किए जा रहे हैं वो क्लियर एंड फेयर होने चाहिए, एंड those who are not following these rules and discipline, for them there should be judicious use of penalty. अब penalty क्या हो सकती है? ऑर्गेनाइजेशन की बात है, ये कोई स्कूल तो है नहीं कि क्लास से आपको खड़ा कर दिया जाएगा, है ना, या आपको पनिशमेंट दी जाएगी. यहाँ पर क्या है, आपको प्रमोशन के चांसेस रोक दिए जाते हैं, इंक्रीमेंट्स नहीं लगती हैं, उतना बेनिफिट आप में नहीं, इंसेंटिव प्लान्स नहीं मिलते जितने आपके दोस्तों को मिलता है. तो ज्यादातर जो पेनल्टीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन वो मॉनेटरी एंड समवेयर आपकी स्टेटस और रिकग्निशन को अफेक्ट करती हैं. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप चाहते हैं कि डिसिप्लिन इंश्योर हो तो इन सभी चीजों का होना जरूरी है. तो इफ इट इज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन तो व्हाट आर द इम्पैक्ट? हेल्थ इन smooth working in the organization. I think this is agreed by all of you. Number 2, it helps to improve efficiency as work is done as per the rules and standard. Discipline हमारे efficiency को भी बढ़ाता है. कैसे? जैसे कि हमने कहा organizational rules को मानना, and rules और standards and quality standard mention करता है. तो हम अपनी quality वाला काम करने के लिए वहां पर अपना बेस्ट देते हैं तो उससे एफिशिएंसी भी इंश्योर होती है, एंड डेफिनेटली ऑर्डरलीनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, द वर्क इज डन सिस्टमैटिकली. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? इफ डिसिप्लिन इज नॉट बीइंग फॉलोड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन तो देयर विल बी अ अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजर, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ब्लेम करेंगे एंड उनके रिलेशनशिप कहीं से भी हेल्दी नहीं रहेंगे. नंबर 2, स्मूथ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क विल बी एडवर्सली इफेक्टेड. काम नहीं होगा, स्मूथली तो बिल्कुल भी नहीं होगा. एंड chaos इन द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ व्हाट इज chaos? chaos होता है haphazardness, और when the things are not clear or vague. तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ haphazard है, आपको क्लियर कुछ दिख नहीं रहा, किससे गाइडलाइंस लेनी है, तो such kind of situation in the organization is called chaos. तो definitely due to not following this principle there will be chaos in the organization. The next principle that we are going to discuss is unity of command. According to Fuel, there should be one and only one boss for every individual employee. अगर एक पर्सन के दो बॉस होंगे तो आप सोच सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकेगी? प्रॉब्लम ये होगी कि जो सबऑर्डिनेट है वो पहले बॉस की बात माने या दूसरे बॉस की बात माने, और अगर एक की बात मान ली तो दूसरा कहेगा मेरी बात नहीं मानी. तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट, एंड दिस विल लीड टू कि ही इज नॉट एबल टू गिव हिज बेस्ट. सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हेनरी फ्योल जी ने ये प्रिंसिपल दिया है, यूनिटी ऑफ कमांड. वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय. राइट? तो दो बॉस नहीं हो सकते किसी एक एम्प्लॉय के. द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट दैट each participant in formal organization should receive order from and be responsible to only one superior. तो आप किसके अंडर काम कर रहे हैं, who will command you, ये रिलेशनशिप जो है सबसे पहले एम्प्लॉय को क्लियर होना चाहिए. एंड यहाँ पे दो सुपीरियर की बात नहीं हो रही, ड्यूअल सुपीरियर कैन नॉट बी देयर. पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा अगर हम एक ही बॉस बनाएंगे ग्रुप का और इंडिविजुअल का?
नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग द वर्क टू बी डन, जो बॉस कह रहे हैं वो करेंगे, राइट, दैट इज द क्लियरिटी. अगर आपने ऐसा क्यों किया, इंस्ट्रक्शंस थे, बॉस ने ऐसा कहा था, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा. नंबर 2, नो कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द सुपीरियर, और सुपीरियर्स में भी लड़ाई नहीं होगी, उनके भी बीच डिस्प्यूट नहीं होगा कि सबॉर्डिनेट आपका काम करता है, मेरा काम नहीं करता है, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. Then clarity in superior subordinate relationship makes subordinate answerable to one person only. और जब superior और subordinate की relationship clear है, तो subordinate को पता है उसने किसको रिपोर्ट करना है, तो ये क्लैरिटी उनके काम को एनहांस करेगी, बढ़ाएगी. If this principle is not followed, तो क्या होगा? Confusion among worker regarding work to be done. वर्कर को पता ही नहीं है, बॉस ए एक काम बोल गए, बॉस बी दूसरा काम बोल गए. नाउ द टीम इज कंफ्यूज किसकी बात को माननी है और कितना काम ए का करना है, कितना काम बी का करना है. लॉट ऑफ कंफ्यूजन. नंबर 2, कॉन्फ्लिक्ट अमंग वर्कर्स और सुपीरियर्स, कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाएगा, वर्कर इनकी बात मानते हैं, इनकी बात नहीं मानते. देन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन गेट डिस्टर्ब, जिसको कि हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन में क्योस हो जाएगा, है ना, हैप्पीनेस हो जाएगी, क्लैरिटी नहीं है, ऑर्डर नहीं है. ऑल दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स, और यूनिटी ऑफ कमांड. कमांड में आपने याद रखना है, एक टीम का और एक इंडिविजुअल का एक ही बॉस हो सकता है. तो यूनिटी ऑफ कमांड में मतलब कमांड एक ही जगह से मिलेगी और उसी की कमांड को आपने फॉलो करना है. बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब किस दिशा में हमने अपने रिजल्ट्स को लेके जाना है, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. All the unit of an organization should be moving toward the same objective through coordinated and focused effort. हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं, अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी होते हैं, पर क्या ये लोग अलग अलग काम करते हैं? काम बटा हुआ होता है, पर ये सारा काम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और उस डायरेक्शन का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सो कितने भी ज्यादा डिपार्टमेंट क्यों ना हो, कितने भी ज्यादा लोग क्यों ना काम कर रहे हो, कितने भी अलग अलग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्यों ना हो, इन सभी काम के पीछे मकसद एक ही है कि हमने एक दिशा में काम करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. दिस इज ऑल अबाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस. Each group of activity having the same objective must have one head and one plan. तो यहाँ पर उसमें कहा था वन बॉस होना चाहिए. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक स्टेप आ गया, वो कहते हैं कि वन हेड भी होना चाहिए और वन प्लान भी होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि प्लान सबका अलग अलग है, तो सबके माइंड में ये प्लान क्लियर होना चाहिए कि हम सबकी एक्टिविटी किस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. सो व्हाट विल बी द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? Ensure unity of action among various group. तो इससे यूनिटी ऑफ एक्शन भी होगा अगर हमारी डायरेक्शन क्लियर है कि हमने किस दिशा में सबने मिलकर काम करना है. सो हम सभी के कामों में यूनिटी ऑफ एक्शन भी आएगा. इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन. हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन try to bring this coordination by clarifying that plan in the mind. Then facilitate achievement of goals. तो जब कोऑर्डिनेशन होगा, सब एक डायरेक्शन में काम करेंगे, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स हैं वो भी अचीव होंगे. इफ दिस प्रिंसिपल इज मिसिंग, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है तो एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन प्लान्स एंड दे आर वर्किंग इन द ऑल डायरेक्शंस. तो व्हाट विल हैपन? इट लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट. डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट मतलब एक ही काम को 2-3 लोग कर रहे हैं. उससे क्या होगा? ए ने भी वही काम किया, बी ने भी वही काम किया, सी ने भी वही काम किया, तो 3-3 लोग एक ही काम को कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. और इससे क्या होगा? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी होगा. इसलिए तो हमने डिवीजन ऑफ वर्क कहा था ना कि एक काम एक ही को दे दो, दूसरे लोग वो काम नहीं करेंगे. सो if unity of direction is not there, to definitely it leads to duplication of efforts and wastage of resources. Number 2, lack of coordination. Coordination nahi hoga, and when coordination is not there, plan is not there, to failure in achievement of organizational goals. Now aapne दो terms पढ़े, one unity of command, other was unity of directions.
and sometimes students are getting confused. So we need to understand the difference in these two terms. For this, we are going to take up one table. Have a look at this table. इस साल और हमने पिछले साल भी आपको इस बात पे इंसिस्ट करवाया था कि जब भी हमारे प्रिंसिपल्स कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है तो हमें बेसिस ऑफ डिफरेंस हमेशा लिखने होते हैं, क्योंकि नाउ एग्जामिनेशन सिस्टम हैज चेंज. ओपन एंडेड क्वेश्चन कम आते हैं कि एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंसेस. इस तरह के क्वेश्चन आप पेपर में कब पूछे जाते हैं. तो इफ दे आर गोइंग टू डिफरेंशिएट यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एम, तो इसलिए आपको बेसिस ऑफ डिफरेंसेस के साथ डिफरेंशिएशन करना जरूरी है. पहला जो बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हमने इन दो कॉन्सेप्ट में क्रिएट करने के लिए लिया है, दैट इज अ मीनिंग. यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन सुपीरियर. तो यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है उसका सिंपल सा जिस्ट है कि एक सबऑर्डिनेट ने एक ही सुपीरियर से कमांड लेनी है. बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान. यहाँ पर है कि सबऑर्डिनेट एक ही से ऑर्डर लेगा, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर की बात हो रही है और रिस्पॉन्सिबल भी वो सिर्फ उसी के प्रति है. लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये है कि एक हेड होगा, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी की बात हो रही है कि वो हर ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैं जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है उनका एक ही हेड होगा और एक ही प्लान होगा, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. नंबर 2 इज एम. यूनिटी ऑफ कमांड में इट प्रिवेंट ड्यूअल सबऑर्डिनेशन. ड्यूअल सबऑर्डिनेशन मतलब कि दो सुपीरियर नहीं बनेंगे, है ना. दो लोगों के अंदर एक बंदा काम नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड ड्यूअल सबऑर्डिनेशन. बट जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है उसका एम क्या है, इट प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज. ओवरलैपिंग मतलब एक ही काम को 2, 4, 5 लोग करें, जिसे हम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी बोलते हैं. तो इसका जो यूनिटी ऑफ कमांड का एम है वो है ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को प्रिवेंट करना, कि एक पर्सन के दो बॉसेस नहीं बनाने हैं. और उसका जो पर्पस है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का वो है टू प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. इम्प्लीकेशन, जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर उसके 2 सुपीरियर है तो ही विल बी कंफ्यूज एंड ही इज नॉट एबल टू गिव हिज बेस्ट. सो जो इसका इम्पैक्ट है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल के ऊपर हम स्टडी करते हैं, बट जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि अगर आपकी डायरेक्शन में यूनिटी नहीं है तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव विल नॉट बी अचीव. सो द इम्प्लीकेशन ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन विल बी ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन. I hope this is clear to you. The next principle is subordination of individual interest to general interest. Subordination क्या होता है? Subordination का मतलब होता है कौन किसके अधीन काम करेगा. तो अधीन मतलब कौन किसके अंडर काम करेगा. तो हम क्या कह रहे हैं, Subordination of individual interest to general interest. इसका मतलब जनरल इंटरेस्ट ऊपर आता है, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट उसके अंदर आता है. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, जब आपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है कि भाई मैं ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके जल्दी से प्रमोशन करके खूब सारा कमीशन कमाऊंगा, इंसेंटिव कमाऊंगा, इंक्रीमेंट मुझे मिलेंगे. ये इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है. लेकिन जब आपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव था आपको ज्वाइन करवाने के पीछे? उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इस स्पेशलिस्ट की मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेंगे टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. अब किसके ऑब्जेक्टिव को पहले अचीव करना है, इंडिविजुअल के कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए? द आंसर इज ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव पहले अचीव होगा. वो क्यों? क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करेगी वो प्रॉफिट अर्न करेगी. जो प्रॉफिट अर्न करेगी वही वो अपने इंडिविजुअल एम्प्लॉइज को आगे इंक्रीज्ड इंक्रीमेंट, कमीशन एंड प्रमोशन के फॉर्म में देगी. सो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मींस जब भी
ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप का इंटरेस्ट आएगा, वो पहले अचीव करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट उसके अंदर काम करता है. The interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employee according to Fjord. किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से ऊपर नहीं हो सकता. In all the situation, the interest of group or company will supersede the interest of any one individual. This is so because larger interest of workers and stakeholders are more important than the interest of any one persons. So, अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हमेशा ऊपर रखेंगे अपने काम करते समय, अपनी सोच में, और एम्प्लॉइज में ये कल्चर डेवलप करते हैं कि वो हर काम में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले रखें, तो क्या फायदा होगा? तो फायदा ये होगा, देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल गोल. तो कोऑर्डिनेशन होगा दोनों गोल्स के बीच में, जो पर्सन का गोल है और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होते जाएंगे, वैसे वैसे जो पर्सनल गोल है वो भी धीरे धीरे पूरे होते जाएंगे. Employees are more focused toward group goal in order to get personal benefit. और एम्प्लॉय भी अपने ग्रुप के गोल पे ज्यादा फोकस करेंगे, जो अल्टीमेटली उन्हें हेल्प करेगा उनके खुद के गोल को अचीव करने में. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बिकम डिफिकल्ट एंड एम्प्लॉय में बी एडवर्सली अफेक्टेड लेटर ऑन. और अगर जो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ऊपर नहीं रख के चलती हैं, पहले उनको स्थान नहीं देती हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं होंगे एंड सूनर और लेटर ये एम्प्लॉइज को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव नहीं होंगे तो पर्सन्स के भी और गोल्स अचीव नहीं होंगे. द नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि इस सेशन में हमने लेना है, दैट इज द रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय. रेम्यूनरेशन क्या होती है? The overall pay and compensation should be fair to both employees and the organization. Before understanding this, remuneration is the sum total of the benefit that any employee drawing from the organization. जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कोई एम्प्लॉय हायर होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन से कुछ चीजें विड्रॉ करता है इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज, अलाउंसेस, perquisites and so many other benefits, जिनके बारे में हम लेटर चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे. ये जो ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन हम एम्प्लॉय को देते हैं, ये कैसी होनी चाहिए? तो इसके लिए हेनरी फ्योल ने कहा है कि इट शुड बी फेयर, फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय के लिए ही फेयर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की भी कैपेसिटी के मुताबिक होना चाहिए. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? उन्होंने कहा एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इस फेयर वर्ड को डिफाइन करने के लिए उन्होंने कहा कि एम्प्लॉय के लिए फेयर क्या होगा? एम्प्लॉय के लिए फेयर का मतलब है कि वो इतनी जरूर हो कि वो उसको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करे. नंबर 2, एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी. ऐसा ना हो कि कंपनी के जो बजट है और उसके कंपनी को उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा और हम कह रहे हैं कंपनी हमको इतने पैसे दे दे. तो कंपनी भी आपको उतना ही पैसा पे करे जितना कि आप काम कर रहे हैं. अब हर किसी के काम का एक दायरा है, उस काम के दायरे के अंदर ही आपको आपका पे एंड स्केल मिलेगा. तो ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल का एम्प्लॉय है, तो जिसका जितना काम है उसके मुताबिक उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड होता है. तो इट शुड बी फेयर फॉर बोथ एम्प्लॉय एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. इन अदर वर्ड, रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल. जस्ट एंड इक्विटेबल को हम कैसे समझाएंगे? अगर किसी फर्म ए में सेम काम के लिए, सेम क्वालिफिकेशन के लिए एक पे स्ट्रक्चर दिया जाता है, तो सेम पे स्केल, सेम क्वालिफिकेशन के लिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अंडर पेड किया जा रहा है, तो इसका मतलब वो फेयर एंड जस्ट नहीं है. तो जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है किसी भी काम के, उतना तो इक्विटेबल मिलना ही चाहिए. If this principle is not followed, if the remuneration of the employees are not fair and just, how it will affect the organization? If it is followed, it motivates the employee and keep them satisfied. तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो कहते हैं we never want to leave this organization because their remuneration is so good that they are satisfied. और वो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को कि they should give their best. Number 2, it reduce labor absenteeism. और
अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो ही डोंट लाइक टू बी एब्सेंट फ्रॉम देयर जॉब, तो एब्सेंटिज्म भी कम होगा. And if this remuneration is not justifiable and equitable, what will happen? Absence of adequate reward create dissatisfaction among the employee and increase labor turnover and cost of recruitment. What is labor turnover? Labor turnover is the rate among labor to leave the organization. What is labor turnover? It is the rate among labor to leave the organization. जब और लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाते हैं उस दर को हम बोलते हैं लेबर टर्नओवर. तो अगर आपका रेम्यूनरेशन जस्टिफिएबल और इक्विटेबल नहीं है तो लेबर टर्नओवर ज्यादा होगा, क्योंकि दे डोंट लाइक टू रिटेन इन योर बिजनेस. वो उनको जहां अच्छा बेटर ऑप्शन मिलेगा दे विल बी मूविंग टू दैट. तो इसका मतलब बार बार आपका लेबर आपको छोड़कर जाएगा, और अगर लेबर आपको छोड़कर जाएगा इट मीन्स इट विल एड टू द कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट. आपको और नए लोग भर्ती करने पड़ेंगे जिसपे कि आपका कॉस्ट लगेगा. तो अगर आप इस चीज को अवॉइड करना चाहते हो, द रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल. That's it for today's students. I hope this topic is clear. In the next class, we will be taking up the next 7 principle of hand review. Thank you.